Good morning, students. Hope you all are fit and fine. We have completed safety rules of our semester 1 book. Now we will start with our semester 2 book. In semester 2, our first chapter is our house. Okay. So, do you all know what is a house? A house is a place where we live in. हाउस मतलब घर. हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. वो हमें धूप, बारिश और ठंड से बचाता है. वी लिव इन विथ आवर फैमिली. हम घर में हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. अब हमारी फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके. वी फील सेफ इन अ हाउस. वी कीप आवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस. घर में हम सेफ फील करते हैं और हमारी चीज़ को भी सेफ रख सकते हैं. सेफ यानी कि सुरक्षित. See students, this is a picture of house. Now we will discuss about different types of houses. Okay, there are two different types of houses. Number 1, kacha house, and number 2, pakka house. Once again, how many different types of houses are there? There are two types of houses. Which are they? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. घर के कितने टाइप है? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. Now we will discuss about कच्चा हाउस. कच्चा हाउस is made up of mud, straw and bamboo sticks. Its roof are made up of thatched straw, palm leaves or tin sheets. They are not very strong. They are also known as temporary house. This house is mostly found in villages and slum areas. Its example is hut. अब कच्चा हाउस मतलब क्या? कच्चा हाउस मड, स्ट्रॉ और बैम्बू स्टिक से बनता है. उसके रूफ किससे बनते? थैच्ड स्ट्रॉ, पाम लीव्स और टिन शीट्स. वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं. उसको टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है. ज़्यादातर कच्चा हाउसेस गांव और स्लम एरियाज यानी कि झुपड़पट्टी होती है वहाँ पर दिखाई देते हैं. और उसका एग्जाम्पल है हट यानी कि झोपड़ी. Now we will see the different materials of kacha house. See, this is straw. इसको हम क्या बोलेंगे? Straw. This is bamboo stick. Okay. And its example is hut. This is the picture of a hut. Okay, then comes pakka house. Pakka houses are made up of bricks, cement, steel and mortar. Now, what is mortar? Mortar is mixture of water and cement. It is also known as permanent house. Pakka houses are found in cities and towns. Its examples are bungalow, multi-storied buildings, apartments and flats. पक्का हाउस किससे बनते हैं? तो पक्का हाउस ब्रिक्स,
सीमेंट, स्टील और मोटर से बनते हैं उसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ज़्यादातर पक्का हाउसेस सिटीज़ और टाउन्स में होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? बंगलो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स एंड flats. These are the different materials of a pakka house. This one is steel, cement and brick. This is steel, this is cement and brick. Examples of pakka house: bungalow, flat, multi-storied buildings. Which are the different examples of a pakka house? Bungalow, flat and multi-storied building. Special houses. They are found only in particular areas. वो हर जगह पर नहीं होते, वो कई कई जगह पर होते हैं। अब स्पेशल हाउसेस कौन कौन से हैं? इग्लू, स्टिल्ट हाउसेस, कैरावन, tents and houseboats. Special houses, they are found only in particular areas. Which are the different special houses? Igloo, stilt houses, caravan, tents and houseboats. Okay, now number 1 is igloo. Igloos are made from a block of an ice. They are found where there is snowfall. Igloos are built by Eskimos. Igloos किससे बनते हैं? आइस। वो कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर स्नोफॉल होता है। इग्लूस कौन बनाते हैं? एस्किमोस। Okay, students, this is a picture of igloo. ये किसकी पिक्चर है? इग्लू। Okay, next is stilt house. They are found where it rains heavily. They are made up of bamboo sticks and wooden poles. Such houses are found in Assam. स्टिल्ट हाउस कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बहुत बारिश होती है। किससे बने हुए हैं? बैम्बू स्टिक्स एंड वुडन पोल्स। कहाँ पर ये हाउसेस होते हैं? आसाम में। कहाँ पर होते हैं? आसाम। दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टिल्ट हाउस. विच पिक्चर इज दिस? Stilt house. Okay. Then comes caravan. Caravan is house on wheels. Caravan मतलब जो घर व्हील्स यानी कि गाड़ी जैसे होते उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेवन. People who do not stay in one place are called nomads. जो लोग काफ़ी समय तक एक जगह पर नहीं रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉमैड्स. नॉमैड्स लिव इन अ कैरावन. कौन कैरावन में रहते हैं? नॉमैड्स. इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैरावन एक ऐसा घर है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं. ओके, सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैरावन. ये किसका पिक्चर है? कैरावन. ओके. देन कम्स टेंट्स. टेंट इज अ टेम्पररी हाउस. इट इज मेड अप ऑफ कैनवास. सोल्जर्स, पुलिस, पिलग्रिम्स लिव इन टेंट्स. टेंट एक टेम्पररी घर है और वो किससे बना है? कैनवास. कौन रहते हैं टेंट्स में? सोल्जर्स, पुलिस, पिलग्रिम्स लिव इन टेंट्स. देखो हम कहीं पर जाते हैं कई टूर के लिए, है ना, तो हम टेंट लगाते हैं तो वो 2-3 दिन के लिए होता है.
फिर हम दूसरी जगह पर जाएंगे तो दूसरी जगह पर टेंट लगाते हैं ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी शेल्टर. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टेंट. ये किसकी पिक्चर है, टेंट. नाउ द लास्ट वन इज हाउस बोट्स. Houseboats are built on water and they float on water. They are commonly found in Dal Lake and in backwaters of Kerala. Houseboats जो घर पानी में बनाया जाता है और बोट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट्स. ये ज़्यादातर आपको डाल लेक जो श्रीनगर में है वहाँ पर और केरलास में दिखाई देंगे. और टूरिस्ट लोग ज़्यादातर हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं. ओके. सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हाउस बोट. ये किसकी पिक्चर है, हाउस बोट. ऑफ अ गुड हाउस. कोई भी अच्छा घर के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इट शुड बी लोकेटेड इन अ क्लीन ओपन एरिया. वो एक अच्छा और खुली जगह में होना चाहिए. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श क्लाइमेट. वो हमें आंधी तूफान और बाढ़ है तब हमको सुरक्षित रखे. इट शुड बी ओपन, एरी, स्पेशियस एंड क्लीन. वो एयर यानी कि उसमें हवा आनी चाहिए. स्पेशियस यानी कि बड़ा होना चाहिए. क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ ओपन योर सेमेस्टर 2 बुक. लेसन नंबर 1, आवर हाउस. ओके, open page number 1. All of you opened? Okay. First of all, write your name in this space. Write today's date. Which date is today? 10th December 2020. Okay. Now we will start reading. Our house. We need a house to live in. A house protects us from heat, cold, rain, and so on. It is a place where we can keep our things safely. A family stays together in a house. Staying together with our parents, grandparents, brothers and sisters make us feel safe and happy. Different kinds of houses. Kacha houses. They are made of mud, straw and bamboo sticks. The roofs of kacha houses are made up of thatched straw, palm leaves or tin sheets. Kacha houses are not very strong. A hut is an example of kacha house. Pakka houses. Strong houses made up of bricks, cement, steel and mortar are called pakka houses. Bungalows, flats in multi-story buildings and apartments are called pakka houses. Special houses. Special houses are found in particular areas. Igloos. Igloos are houses made from a block of ice and are found where there is snowfall all the time. Stilt houses. Stilt houses are found in a place where it rains heavily.
These houses are made on bamboo and wooden poles. Such houses are found in Assam. Caravans. A caravan is called a house on wheels. People who do not stay in one place are called nomads. Nomads live in caravans which can be moved from one place to another. Tents. Tent is a temporary shelter. It is made up of canvas. Soldiers, police, pilgrims, scouts and guides live in tents. Houseboats. Houses built on water and float on water are known as houseboats. They are commonly found in Dal Lake in Srinagar and in the backwaters of Kerala. A good house should be located in a clean, open area. Be strong enough to protect us from harsh climate. Be open, airy, spacious, and clean. Now let's revise what we have discussed in our today's class. आज का हमारा टॉपिक है हाउस. हाउस मतलब क्या है? हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव इन. हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब रहते हैं. हाउस हमें ठंड, बारिश और धूप से बचाता है. हम हमारे घर में हमारी चीज़ें सेफ रख सकते हैं. घर में पूरी फैमिली साथ में रहती है. हमारी फैमिली में कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. कितने टाइप्स के हाउसेस है? 2 टाइप्स. कौन कौन से? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. नाउ व्हाट इज़ कच्चा हाउस? जो हाउस स्ट्रॉ, मड और बैम्बू स्टिक से बना है उसको हम क्या बोलेंगे? कच्चा हाउस. ये हाउस आपको गांव में दिखाई देंगे या फिर स्लम्स एरिया में. कच्चा हाउसेस आर नॉट परमानेंट हाउसेस, सो दे आर ऑल्सो नोन एज टेम्पररी हाउसेस. कच्चा हाउस को क्या क्या बुलाते हैं? टेम्पररी हाउसेस. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. कच्चा हाउस का एग्जाम्पल क्या है? हट. नंबर 2, पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टील, सीमेंट, ब्रिक एंड मोटर. दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउसेस. पक्का हाउस मतलब क्या? जो घर स्टील, सीमेंट, मोटर से बने हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पक्का हाउसेस. उसको दूसरा नाम क्या है? परमानेंट हाउसेस. पक्का हाउस कहाँ पर होते हैं? सिटीज़ एंड टाउन्स में. उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स. देन कम्स स्पेशल हाउसेस. स्पेशल हाउसेस कई पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, जैसे कि इग्लूज, स्टिल्ट हाउसेस, कैरावन्स, टेंट्स, हाउस बोट्स. ओके. अब सबसे पहले आता है इग्लूज. अब इग्लूज मतलब क्या? इग्लूज आइस से बने हुए हैं. इग्लूज किस मटेरियल से बनते हैं? आइस. इग्लूज कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर स्नोफॉल होता है. और इग्लूज कौन बनाता है? एस्किमोज. देन कम्स स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवीली. जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ वुडन पोल्स एंड बैम्बू स्टिक्स. वो किससे बने हुए हैं? बैम्बू स्टिक्स एंड वुडन पोल्स. ज़्यादातर स्टिल्ट हाउसेस आसाम में होते हैं. देन कम्स कैरावन्स. कैरावन इज हाउस ऑन व्हील्स.
Who lives in caravan? Nomads. अब nomads मतलब क्या? जो लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेवन और सॉरी nomads. The people who do not stay at one place, they are called nomads. Nomads move from one place to another. Then comes tents. अब टेंट एक टेम्पररी शेल्टर है. दे आर मेड अप ऑफ कैनवास. वो किस से बनते हैं? कैनवास. और टेंट में कौन रहते हैं? सोल्जर्स, पिलग्रिम्स, है ना. एंड लास्ट इज हाउस बोट्स. हाउस बोट्स मतलब जो घर बोट में बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट. हाउस बोट ज़्यादा तक आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? डाल लेक एंड केरला. ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, घर कैसा होना चाहिए? तो हमारा घर बड़ा यानी कि स्पेशियस, क्लीन यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए. और हमारा घर हमें आंधी तूफान या बाढ़ से हमें सुरक्षित रखना चाहिए. और हमारा घर एयर यानी कि हवा 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 भी आनी चाहिए. ओके. होप you all enjoyed our today's class. Goodbye and take care.